محترم ناظرین، السلام علیکم۔ بوتل کے قیدی بڑا سنسان جزیرہ تھا، اونچے اونچے اور بھیانک درختوں سے ڈھکا ہوا۔ جتنے بھی سیاح سمندر کے راستے اس طرف آتے، ایک تو ویسے ہی انہیں حوصلہ نہ ہوتا تھا کہ اس جزیرے پر قدم رکھیں، دوسرے آس پاس کے ماہی گیروں کی زبانی کہی ہوئی یہ باتیں بھی انہیں روک دیتی تھیں کہ اس جزیرے میں آج تک کوئی نہیں جا سکا اور جو گیا واپس نہیں آیا۔ اس جزیرے پر ایک انجانا خوف چھایا رہتا ہے، انسان تو انسان، پرندہ بھی وہاں پر نہیں مار سکتا۔ یہ اور اسی قسم کی دوسری باتیں سیاحوں کے دلوں کو سہما دیتی تھیں۔ بتھیروں نے کوشش کی مگر انہیں جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ 4 آدمیوں کے ایک چھوٹے سے قافلے نے اس ہیبت ناک جزیرے پر قدم رکھا۔ کمال ایک کاروباری آدمی تھا۔ وہ ممبئی کے ہنگاموں سے اکتا کر ایک پرسکون اور الگ تھلگ سی جگہ کی تلاش میں تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ جزیرہ ابھی تک غیر آباد ہے، وہ اپنی بیوی پروین، اپنی لڑکی اختر اور اپنے لڑکے اشرف جس کی عمر 15 سال تھی، دونوں بھائی بہن نے جب یہ بات سنی تو بے حد خوش ہوئے، کیونکہ ان کے خیال میں اس جزیرے پر ایک چھوٹے سے گھر میں کچھ وقت گزارنا جنت میں رہنے کے برابر تھا۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب کمال اپنے بچوں کے ساتھ اس جزیرے پر اترا۔ جزیرہ اندر سے بہت خوبصورت تھا، جگہ جگہ پھولوں کے پودے لہلہا رہے تھے، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پھلدار درخت سینہ تانے کھڑے تھے۔ اونچے اونچے ٹیلوں اور سبز گھاس والا جزیرہ بچوں کو بہت پسند آیا، مگر اچانک کمال نے چونک کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے ہلکا سا کہکا لگایا ہو۔ پہلے تو اس نے اس بات کو وہم سمجھ کر دل میں جگہ نہیں دی، مگر دوبارہ ویسا ہی ہوا تو اس کے کان کھڑے ہوئے۔ اس نے دل میں سوچ لیا کہ ماہی گیروں کی کہی ہوئی باتوں میں سچائی ضرور ہے، مگر اس نے بہتر یہی سمجھا کہ اپنے اس خیال کو کسی دوسرے پر ظاہر نہ کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا تو بچے ضرور ڈر جاتے۔ جب تک دن رہا وہ سب جزیرے کی سیر کرتے رہے۔ رات ہوئی تو انہیں کوئی محفوظ جگہ تلاش کرنی پڑی جہاں وہ خیمہ لگانا چاہتے تھے۔ آخر ایک چھوٹے سے ٹیلے سے نیچے انہوں نے خیمہ گاڑ دیا، مگر کمال بار بار یہی سوچتا رہا کہ آخر وہ ہلکے سے کہہ کے اسے پھر سنائی دیے۔ کمال کو پریشانی تو ضرور ہوئی، مگر وہ اپنی اس پریشانی کو دوسروں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنی بیوی سے کہا ابھی تو اسی جگہ رات بسر کی جائے، صبح کو ایسی جگہ دیکھوں گا جہاں مکان بنایا جا سکے۔ مگر سنو کمال، کیا تم نے کسی کے ہنسنے کی آواز سنی ہے؟ پروین نے سہم کر پوچھا۔ سنی تو ہے، کمال نے آہستہ سے کہا، مگر اس بات کو بچوں سے چھپائے رکھنا۔ میرے خیال میں ماہی گیر ٹھیک کہتے تھے، مگر ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں اتنا بزدل نہیں ہوں کہ اس معمولی باتوں سے گھبراؤں۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اشرف نے سہم کر کہا، ابا میں نے کسی کی ہنسی کی آواز سنی ہے اور یہ ہنسی بہت قریب سے سنائی دی ہے۔ کیا بات ہے؟ کہیں یہاں بھوت ووت تو نہیں ہے؟ پاگل مت بنو اشرف، یہ تو کسی پرندے کی آواز ہے، میں بھی بہت دیر سے سن رہا ہوں۔ کمال نے یہ کہہ کر اشرف کو ٹال دیا، مگر اشرف سوچ رہا تھا کہ اس جزیرے میں سے ایک بھی پرندہ نہیں ہے، پھر آخر ابا جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ خاموشی سے اندر خیمے میں جا کر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ جب صبح ہوگی تو خواہ مخواہ کا ڈر بھی اس کے دل سے دور ہو جائے گا۔ رات کو تو ایسے ہی اوٹ پٹانگ خیال ذہن میں آیا کرتے ہیں۔ صبح بھی آ گئی۔ دوسری جگہوں کی طرح یہاں پرندوں کی چہچہاہٹ بالکل نہیں تھی، پھولوں پر تتلیاں بھی نہیں منڈلا رہی تھی۔ ایک پر اسرار خاموشی نے پورے جزیرے کو اپنی گود میں لے رکھا تھا۔ کمال نے سب کو اٹھایا اور پھر کہا کہ آؤ جزیرے کے کونے کونے کو دیکھیں، ہو سکتا ہے کہیں ہمیں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پینے کا پانی بھی ہو اور سمندر سے قریب بھی ہو۔ بس ایسی ہی جگہ ہم اپنا چھوٹا سا گھر بنائیں گے۔ یہ سن کر سب نے سامان باندھا اور اپنے کندھوں پر لٹکا لیا۔ پھر یہ چھوٹا سا کنبہ گھر بنانے کے لیے جزیرے کے اندر بڑھنے لگا۔ شاید 1-2 فرلانگ چلنے کے بعد ہی کمال ٹھٹک گیا۔ اس کی نظریں سامنے کی طرف جمی ہوئی تھی۔ اس جزیرے کے خوبصورت جنگل میں ایک نہایت ہی خوبصورت مکان بنا ہوا تھا۔ شاید یہ مکان بہت اونچا تھا کیونکہ اس کا اوپر کا حصہ درختوں میں چھپ گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ تھی، یہ مکان بالکل شیشے کا نظر آتا تھا۔ گویا اس کی دیواروں کے آر پار کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، لیکن دیواروں کی چمک بتاتی تھی کہ وہ شیشے کی بنی ہوئی ہیں۔ بالکل سامنے ایک دروازہ تھا اور دروازے کے آگے ننھی منی سی روش تھی۔ ابا یہ مکان کس کا ہے؟ اختر نے پہلی بار پوچھا۔ کوئی نہ کوئی یہاں ضرور رہتا ہے، کمال نے جواب دیا۔ ماہی گیر غلط کہتے تھے کہ یہ غیر آباد جزیرہ ہے۔ ارے مگر دروازہ تو کھلا ہے، اشرف نے حیرت سے کہا۔
आ जाइए, अंदर आ जाइए, मैं तो बरसों से आपका इंतजार कर रहा हूँ। एक बड़ी भारी आवाज अंदर से आई। चलिए अंदर चलकर तो देखे कौन है, कोई हमें बुला रहा है, परवीन ने कमाल के कान में कहा। कमाल ने आहिस्ता से दरवाजा खोला और फिर उसके साथ ही एक एक करके सब अंदर दाखिल हो गए। अंदर का मंजर देखकर वो हैरान रह गए, क्योंकि उस शीशे के कमरे में फर्नीचर बिल्कुल नहीं था और कमरा खाली था। उसके अंदर दाखिल होते ही अचानक दरवाजा बंद हो गया। कमाल ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि दरवाजा बाहर से बंद हो गया है और अब खुल नहीं सकता। यकायक वही कह के फिर सुनाई देने लगे। पहले उनकी आवाज मध्यम थी, मगर अब बहुत तेज थी। ये कह के किसके हैं, कौन हंस रहा है? कमाल ने चिल्लाकर पूछा, मगर उसकी आवाज शीशे के मकान में गूंज रही थी। चंद मिनट के बाद शीशे की दीवारों के बाहर का मंजर नजर आने लगा और कमाल ने देखा कि बाहर जंगल में धुआं जमीन से उठ रहा है। बढ़ते बढ़ते ये धुआं आसमां तक जा पहुंचा। फिर उस धुएं ने इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली। उन लोगों को शीशे के मकान में देखते ही उसने कहके लगाने शुरू कर दिए। उसके सर पर एक लंबी सी चोटी थी जो उसके कंधों पर झूल रही थी। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, हा हा हा। उस लंबे आदमी ने कहके लगाते हुए कहना शुरू किया, मैं आजाद हूँ। ऐ अजनबी, जानते हो मैं 500 साल से इस शीशे की बोतल में बंद था, लेकिन अब आजाद हूँ, हा हा हा। लेकिन तुम हो कौन और हमें इस तरह कैद करने से तुम्हारा मतलब क्या है? कमाल ने पूछा। मैं जिन हूँ, मैं दुनिया का हर वो काम कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते। 500 साल पहले एक माहीगीर ने मुझे एक मोटी सी बोतल के कैद खाने में से निकाला था, और जब मैंने उसे खाने का इरादा किया तो उस कमबख्त ने मुझे धुएं से बोतल में बंद कर दिया था। मैं वही जिन हूँ अजनबी, समझे? मगर ये तो एक मनगढ़ंत कहानी है, परवीन ने कहा। बहुत से अफसाने दरअसल हकीकतों से ही जन्म लेते हैं, जिन ने कहा। माहीगीर ने मुझे बोतल में कैद किया था और 500 साल बाद टूट गई। मैं फिर आजाद हो गया और मैंने कुछ ऐसे काम किए जिनकी बदौलत मुझे बड़ी ताकतों ने फिर से इस बोतल में, इस जजीरे में कैद कर दिया। मेरी आज़ादी की शर्त यह रखी गई कि उधर कोई इंसान इस जगह आकर मेरी जगह ले ले तो मैं आज़ाद हो सकता हूँ। और इसलिए आज ए बेवकूफ़ अजनबी, तुमने मुझे आज़ाद किया और अब मेरी जगह तुम इस बोतल के कैदी हो, हा हा हा। खुदा की पनाह, तो क्या ये मकान बोतल की शक्ल का है? कमाल ने इधर उधर देखते हुए कहा। अब मैं दोबारा कैदी बनने की गलती नहीं करूँगा, जिन ने कहा। अब मैं दोबारा कैद नहीं होऊंगा, हा हा हा। ये सुनते ही कमाल की बुरी हालत हो गई। उसने दीवानों की तरह जल्दी से आगे बढ़कर इस शीशे की दीवार पर जोर की एक लात रसीद की, मगर नतीजा कुछ न निकला। हिम्मत हार कर वो बेबसी से जिन के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने लगा। बेवकूफ अजनबी, तुम अब यहाँ से कभी बाहर न निकल सकोगे। तुम जिंदगी भर के लिए कैद हो गए हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत से काम करने हैं। जब तुम खुद मुझसे जाने के लिए कहोगे उस वक्त जाऊंगा, इसलिए मुझे इजाजत दो। अभी आपको इजाजत नहीं मिल सकती, क्योंकि आप मुझे एक शरीफ जिन मालूम होते हैं, अख्तर ने हौसला करके कहा। वो तो मैं हूँ ही, कौन कहता है कि मैं शरीफ नहीं हूँ? भोली, अगर आप शरीफ हैं तो ठहरिए और मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये एक पहेली है, अगर आपने इस पहेली का ठीक जवाब दिया तो हम अपनी मर्जी से यहाँ कैद हो जाएंगे, और अगर आपने सही जवाब ना दिया तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी शराफत का मुजाहिरा करेंगे और हमें जाने देंगे। कहानियों में मैंने यही पढ़ा है कि शरीफ जिन कॉल देकर नहीं मुकरते। मैं आपको 3 मौका दूंगी, अगर तीनों बार सही जवाब ना दे सके तो आप हार जाएंगे। बोलिए, मंजूर है? आप खामोश क्यों हैं? क्या आप डरते हैं? ये सुनकर जिन बड़े जोर से हंसा और उसकी हंसी से जंगल के दरख्त लड़ने लगे। उसके बाद वो घुटनों के पल जमीन पर बैठ गया और अपना मुंह शीशे की दीवार के साथ लगाकर जोर से कहने लगा, मैं डरता हूँ, हा हा हा। मैं जो पूरी दुनिया का मालिक हूँ, तुम जैसी नन्ही सी गुड़िया से डर जाऊंगा, हा हा हा। मैं दुनिया का सबसे अक्लमंद जिन हूँ। अपनी शराफत का मुजाहिरा करते हुए मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता हूँ कि तुम मुझसे अपनी पहेली पूछो। बोलो, वो क्या पहेली है? कमाल, परवीन और अशरफ हैरत से अख्तर को देख रहे थे, जो इतने बड़े जिन से मुकाबला करने को तैयार थी। वो क्या चीज है जो पूरी दुनिया को घेरे हुए है? जमीन पर, समंदर में, हवा में, खला में, सब जगह मौजूद है। तुम उसे देख सकते हो मगर देख नहीं सकते। तुम उसे महसूस कर सकते हो मगर महसूस नहीं कर सकते। वो दुनिया की बड़ी से बड़ी फौज से भी ताकतवर है। अगर चाहे तो सुई के नाके में से निकल सकती है और दुनिया का हर इंसान
उसे अच्छी तरह जानता है, बताओ वो क्या है। जिन ने ये सुनकर कहका लगाया और कहा, भोली गुड़िया, पहेली का जवाब ये है कि वो चीज़ एटम है। एटम हर जगह है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, सिर्फ साइंसदान देख सकते हैं। हम उसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी चीज़ को छुएं तो महसूस कर सकते हैं। वो दुनिया की बड़ी से बड़ी फौज से भी ताकतवर है, अगर चाहे तो सुई के नाके से भी निकल सकता है। बिल्कुल गलत, अख्तर ने मुस्कुराकर कहा। दुनिया के बहुत से आदमी एटम को नहीं जानते। ये सुनकर जिन बहुत घबराया और बोला, ठहरो, मुझे सोचने दो। हाँ ठीक है, अब सही जवाब मिल गया। वो चीज़ रोशनी है। रोशनी हर जगह है और हर आदमी उसे देख सकता है। क्यों? अब भी गलत, अख्तर ने खुश होकर कहा। अंधे आदमी रोशनी देख सकते हैं, बेवकूफ लड़की, जिन ने घबरा कर कहा। तुम मुझे नादान समझती हो और धोखा देना चाहती हो। मैं जानता हूँ कि इस पहेली का कोई जवाब नहीं है, इसलिए अब मैं कोई जवाब न दूंगा। जवाब क्यों नहीं है? अख्तर ने कहा। इसका जवाब है सच। सच हर जगह है, तुम उसे देख सकते हो और महसूस भी कर सकते हो, अगर तुम सच्चे हो। और अगर तुम सच्चे नहीं हो, तुम ना उसे देख सकते हो और ना महसूस कर सकते हो। दुनिया का हर शख्स सच को जानता है। सच दुनिया की बड़ी से बड़ी फौज से भी ताकतवर है और एक सुई के नाके से भी निकल सकता है। ये सुनते ही जिन ने एक जबरदस्त कहका लगाया और कहा कि तुमने मुझसे चालाकी से काम लिया और मैंने भी चालाकी से तुमसे सही जवाब मालूम कर लिया। तुमने मुझे 3 मौके दिए थे और मैंने 2 ही मर्तबा में तुमसे ठीक जवाब हासिल कर लिया। कहो कैसी रही? क्योंकि तुमने तीसरे मौके का इंतजार किए बगैर ही सही जवाब बता दिया है, इसलिए तुम हार गई। अख्तर तो अब चुप हो गई, मगर कमाल ने आगे बढ़कर कहा, ये तुम्हारी कमजोरी की पहली निशानी है। तुमने एक बच्ची से चालाकी से ठीक जवाब मालूम कर लिया। सच जितना बड़ा है, तुम उतने बड़े नहीं हो। मेरी बच्ची ने यह साबित कर दिया है। बकवास मत करो, मैं हर चीज से बड़ा हूँ, जिन ने जवाब दिया। गलत है, तुम सच से बड़े नहीं हो, कमाल ने कहा। सच एक सुई के नाके में से निकल सकता है, तुम नहीं निकल सकते। हमारे पास इस वक्त कोई सुई नहीं है जो हम इसका तजुर्बा करें, लेकिन इस दरवाजे में ताले के अंदर कुंजी डालने का सुराख तो है। मुझे यकीन है कि सुई का नाका तो फिर भी छोटा सा है, मगर तुम इस बड़े से सुराख में से भी नहीं गुजर सकते। ये झूठ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सुई के नाके में से भी गुजर सकता हूँ और ताले के सुराख में से भी। लो देखो, मैं धुआं बनकर अभी तुम्हें तजर्बा करके दिखाता हूँ। इतना कहते ही जिन हवा में तहलील होने लगा और फिर धुआं बनने लगा। उसके धुआं बनते ही कमाल ने जल्दी से अपनी पानी की बोतल निकाली और उसका ढक्कन खोल दिया। सब पानी फर्श पर गिरा दिया। जैसे ही जिन धुआं बनकर ताले के सुराख के अंदर आने लगा, कमाल ने जल्दी से बोतल का मुंह उसके सुराख से लगा दिया। जब तमाम धुआं बोतल में चला गया तो कमाल ने ढक्कन मजबूती से बंद कर दिया और हंसकर कहा, हाँ वाकई तुम ताले के सुराख में से निकल सकते हो और फिर बोतल में कैद हो सकते हो। तुमने मुझे धोखा दिया, चालाकी से मुझे बंद कर दिया। जिन्होंने बोतल में से चिल्लाना शुरू किया, मुझे आजाद करो। तुमने सच की बढ़ाई को नहीं माना, इसलिए तुम हार गए। इतना कहकर कमाल ने दरवाजे को खोलना चाहा तो वो खुल गया। लो, दरवाजा भी खुल गया है। अब मैं तुम्हें इस बंदर में वापस फेंक के देता हूँ ताकि तुम दोबारा बाहर निकल कर कोई नया फितना ना खड़ा कर सको। तुमने हमें इस बोतल का कैदी बना दिया था, लेकिन अब तुम खुद ही कैद हो गए हो। जिन इल्तिजा करता रहा, मगर कमाल ने एक ना सुनी और फिर बाहर आकर उसने बोतल समंदर में फेंक दी। एक जोरदार तड़ाका हुआ और शीशे का वो कैद खाना टुकड़े टुकड़े हो गया, जिसकी शक्ल बोतल की सी थी और जिसका कैदी ये छोटा सा कुंबा था।